इंडिया जुटे जट। देखिए, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। हमारा तो इसमें कोई। আসামে মুখ্যমন্ত্রী উপহাস করে বললেন ইন্ডিয়া জোট জনগণকে এন্টারটেইনমেন্ট দিতেই তৈরি হয়েছে। देखिए, ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। ওরা জোট বয়কট করবে, আবার মিলিত হবে, দ্বন্দ্ব হবে, আবার জোট হবে, সব মিলিয়ে মানুষকে জোট মনোরঞ্জন দিতেই থাকবে বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রভু রাম নয়, বাবরকে প্রণাম জানাবে গান্ধী পরিবার। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে কংগ্রেসের বয়কট ইস্যুতে তীর্যক আক্রমণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। কংগ্রেসকে পাপমোচনের সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কিন্তু তারা সুযোগ নিতে চায়নি। আর কিভাবে তাদের সাহায্য করা যায় বলেও মন্তব্য করেন হিমন্ত। देखिए, कांग्रेस को विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था अपना पाप कम करने के लिए। उन्होंने वो मौका नहीं लिया, तो आप और कैसे मदद कर सकते हैं कांग्रेस को। आप अगर रामलला का आपने अपोज किया, एक इकोसिस्टम खड़ा किया पूरा देश में कि राम मंदिर ना बने, फिर भी आपको मंदिर में बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। आपने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। आपका मन नहीं है कि आपका पाप कम होना चाहिए। और उल्टा आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब जाके अफगानिस्तान में बाबर टर्म का दर्शन करके भी आया है। আসামে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ গণমাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেসের বয়কট সম্পর্কে বলেন, ভগবান রাম নয়, সবার আগে বাবরকে প্রণাম জানাবে গান্ধী পরিবার। পাপ মোচনের সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, কিন্তু সেই সুযোগ নেয়নি কংগ্রেস। আর কিভাবে তাদের সাহায্য করা যায়? অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে এভাবেই ঠুকেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। গান্ধী পরিবার কাকে অগ্রাধিকার দেয় সেই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এভাবে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই পরিবার প্রভু রামকে নয়, তার আগে মুঘল সম্রাট বাবরকে শ্রদ্ধা জানাবে। স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে ডক্টর শর্মা বলেন, এত পাপের পর এই পাপ মোচন করতে রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপস্থিত থাকতে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাপ মোচনের সেই সুবর্ণ সুযোগকে তারা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। তারা চান না পাপ মুক্ত হতে। তবে যারা অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণে সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিল তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তই ভুল ছিল বলে তিনি মনে করেন। হিমন্ত বলেন, এর চেয়ে যারা ভগবান শ্রীরামের প্রতি বিশ্বাসী তাদেরই কেবল আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল। আজ মুখ্যমন্ত্রী এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি বলেন, সবাই জানেন জওহরলাল নেহেরু থেকে রাহুল গান্ধী পর্যন্ত এই পরিবারের সবাই আফগানিস্তানে বাবরের সমাধিস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাই এটা নিশ্চিত বাবরের প্রতি তাদের অগাধ ভালোবাসা আজও বিদ্যমান। প্রভু শ্রীরামের প্রতি কোনো আস্থাই নেই তাদের। আমাদের হাতে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য, শুনে নেব কি বললেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। इंडिया जो इंडिया अलायंस का वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। देखिए, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो उनको ये करना है, करने दीजिए। हमारा तो इसमें कोई। देखिए, ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। 3 बच्चे का जो विकास के लिए बातें किए हैं उसमें कुछ जगह में एक करेगा। देखिए, धीरे धीरे हमारा देश पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं बोलूंगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट का तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए असम में हमने ये निर्णय किया हूं कि जो हमारा वेलफेयर स्कीम होगा उनमें कैटेगरी होगा, सर्टेन थिंग्स वी हैव टू गिव टू एवरीबॉडी, बट कोई सारे चीज हम उनको ही दूंगा
जो एक पॉपुलेशन का जो एक गोल्डन नॉर्म्स है वो मान के चलते हैं। सर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस कई बार आया, आज भी आया तो नहीं जा रहे, तो फाइनली जाएगा कोई दिन सर जहां जाना है। जब आपको अगर ईडी का 4 साल नोटिस आते हैं और नोटिस को कंप्लाई नहीं करना है, मतलब आपको टेम्पोररी कहीं जाना नहीं है, आपको जाना है तो परमानेंट ही जाना है। जहां जाना है वो परमानेंट ही जाएगा, चिंता मत। तो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं जा रहा है। देखिए, कांग्रेस को विश्व हिंदू परिषद ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था अपना पाप कम करने के लिए। उन्होंने वो मौका नहीं लिया, तो आप और कैसे मदद कर सकते हैं कांग्रेस को? आप अगर रामलला का आपने अपोज किया, एक इकोसिस्टम खड़ा किया पूरा देश में कि राम मंदिर ना बने, फिर भी आपको मंदिर में बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थे। आपने ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया। आपका मन नहीं है कि आपका पाप कम होना चाहिए। और उल्टा आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सब जाके अफगानिस्तान में बाबर टॉम का दर्शन करके भी आया है। तो उन लोग का बाबर से प्यार है, राम से कोई आस्था नहीं है, तो बुलाना ही गलत था, मैं मानता हूं। किसलिए आप उनको ही बुलाना चाहिए जिसका मन में प्रभु श्री राम का ऊपर आस्था है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या मानते हैं क्या नहीं मानते कोई नहीं जानते हैं। और आज अगर बाबर और राम दोनों को खड़ा कर दे सामने, ये गांधी परिवार तो पहले बाबर को प्रणाम करेगा। तो इसीलिए मेरा लगता है नहीं किया तो शांति हुआ है, वो रहने से अनुष्ठान खराब हो जाता था। उड़ीसा का भविष्य, और मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का ग्रोथ है ईस्टर्न इंडिया में, वो उड़ीसा में बीजेपी का बहुत बड़ा एक संगठन भी बनेगा, सरकार भी बनेगा, सब कुछ हो जाएगा। समय का बातें है, सब कुछ हो जाएगा। सर 22 तारीख अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ जा रहा है, उसको काउंटर करने उड़ीसा ने यहाँ पे जगन्नाथ का 7 दिन पहले मेरा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि सरकार जिसका भी हो, जैसे भी हो, भारत में प्रभु श्री राम श्री कृष्ण जगन्नाथ का जय जयकार होना चाहिए। और हम उस दृष्टि से उसको नहीं देखना हो। जगन्नाथ का जय उड़ीसा में होगा, पूरा देश विदेश में होना चाहिए। श्री राम का भी जय जयकार देश विदेश में होना चाहिए। और मैं नहीं मानता हूं कि इसमें कोई कंपटीशन चल रहा है। 15 तारीख हो रहा है, आप आओगे? अगर मुझको न्योता तो नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। कहाँ असम का सीएम उड़ीसा का कोई अनुष्ठान में आएगा? देखिए मेरा यही है, मैं पूरी हर 2-3 महीना में आते ही रहता हूँ, एक बार देख के जाऊंगा, उसमें क्या। देखिए अभी आप बोलने से मैं बोलूंगा आऊंगा तब न्योता आ जाएगा ना, न्योता मन से आना चाहिए। परिवर्तन होगा इस बार? देखिए उड़ीसा में परिवर्तन होना चाहिए। उड़ीसा का जनता को मैं निवेदन करूंगा कि उड़ीसा मोदी जी का साथ आना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा, काम होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आज पॉलिटिकली नहीं आया हूं, तो मैं पॉलिटिकल भाषण आज नहीं देना चाहता हूं, बात बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन मोदी जी का साथ उड़ीसा को चलना चाहिए। सर एक डबल इंजन का सरकार बनेगी, चलना चाहिए उड़ीसा को। देश का विकास हो रहा है, उड़ीसा का भी विकास होना चाहिए और विकास होना चाहिए। देखिए मैं आज ऐसे आपको मैं यही बताता हूं कि मैं पॉलिटिकल बातें आज नहीं बोलना चाहूंगा, इसलिए अभी देश का लोग पॉलिटिक्स भी सुनना नहीं चाहते हैं। 22 तारीख तक तो देश खाली राम का ही नाम सुनना चाहते हैं। सर दूसरा बात पूछ रहे हैं सर, ये सेंटर को नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग जो सीईसी इलेक्शन पे चीफ जस्टिस को हटाया गया, तो देखिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो नोटिस दिया जाता है। नोटिस का बाद कोर्ट में बहस होता है और कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है हमें सबको मान्यता है। तो नोटिस दिया है उसका ऊपर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोर्ट में अगर आप जो भी इश्यू लेके जाइए नोटिस तो होता ही है। तो नोटिस का बाद में जाके चर्चा करना चाहिए और वो चर्चा कोर्ट का अंदर होना चाहिए। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।